سامعین، آج گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا ایک روزہ دورے پر لورالائی تشریف لائے۔ اس موقع پر ریڈیو پاکستان لورالائی نے گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا کا ایک خصوصی انٹرویو ریکارڈ کیا۔ آئیے خصوصی انٹرویو سنتے ہیں۔ انٹرویور ہیں عمران جاوید۔ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان لورالائی کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ظہور احمد آغا، گورنر بلوچستان۔ آج ہم ان سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ گورنر صاحب، لورالائی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جن پروگرامز کو شروع کیا ہے پاکستان کے طول و عرض میں، اس میں بہت سارے جو انیشیٹوز ہیں وہ بڑے سکسیزفل ہیں، جس میں احساس پروگرام ہے، کامیاب جوان پروگرام ہے، اور بلوچستان کے لیے ڈفرینٹ جو پیرامیٹرز ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں، اپنا گھر اسکیم ہے۔ اور اگر آپ صوبہ بلوچستان کی پسماندگی کو سامنے رکھیں اور غربت کے خاتمے کے لیے نوجوانوں کے لیے جو مختلف پروگرام ہیں، روزگار کے انیشیٹوز لیے گئے ہیں، ان کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں، بحیثیت گورنر بلوچستان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حکومت کس طرح سے چیزوں کو بلوچستان کے لیے مینیج کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ریڈیو پاکستان۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے جو کویسچن کیا ہے، ایک چیز میں کلیئر کر دوں، یہ خان صاحب کا اپنا ویژن ہے، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اور انہوں نے حکمرانی سے پہلے، جس کا میں بذات خود ایک وٹنس ہوں، انہوں نے جو وعدے کیے، اور مجھے بڑی خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے وہ وعدے جو کیے تھے وہ وفا ہوئے۔ وہ بلوچستان کے بارے میں، بلوچستان کے احساس محرومی کے بارے میں، بلوچستان کی جو بیکورڈ رہ چکا تھا سارے صوبوں سے، اب بھی ہے، لیکن جو منصوبے خان صاحب نے شروع کیے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوئے، نہ کسی حکمران نے کیے، اور نہ اتنی فوکسنگ بلوچستان کے عوام نے آج تک دیکھی ہے۔ جو روڈ انفراسٹرکچر ہو، چاہے گوادر پر کام ہو، سی پیک پر ہو، اور اس کے بعد سوترن جو ہمارا بیلٹ ہے بلوچستان کو، ان کو 650 ارب روپے کا جو پیکیج دیا ہے وہ ہو، اور پلس 100 ڈیمز ہو، شوکت خانم ہو، کارڈیک ہاسپٹل ہو، اور نسٹ یونیورسٹی ہو، اس طرح کے بے شمار دیگر احساس پروگرام کے ذریعے جو انہوں نے نوجوان ان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اور بلوچستان کے غریب عوام کی پسماندگی کو خصوصی طور پہ دور کرنے کے لیے جو احساس پروگرام کے ذریعے خان صاحب نے جو پروگرام شروع کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ بلوچستان کے عوام خاص طور پہ ان کا شکریہ، میں ان کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ جتنا بھی انہوں نے بلوچستان کے ساتھ کیا ہے، اپنے ویژن کے مطابق کول کا جو انہوں نے وفا کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے عوام کبھی زندگی میں یہ فراموش نہیں کریں گے۔ سر، بڑا آپٹیمسٹک سٹینس ہے آپ کا، اور اللہ کرے کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے فوراً دور کرے، اور جو موجودہ حکومت ہے اور جو آپ کی ایک کنسنسس ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو زیادہ بہتر کیا جا سکے۔ گوادر سر پوری دنیا میں بلوچستان کی پہچان کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، گوادر یونیورسٹی ہے، اور وی ٹی آئیز کے پروگرام ہیں، ڈفرینٹ انیشیٹوز دیے جا رہے ہیں، پاک چین اسکول وہاں پہ بن رہے ہیں، سی پیک بھی ہے اوبویسلی، اور گورنمنٹ پورا فوکس کر رہی ہے اس وقت گوادر پہ، اور پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ جو پروجیکٹس بلوچستان میں چل رہے ہیں وہ گفٹ ہیں اس وقت بلوچستان کے لیے، تو وہ کس طرح سے پورے صوبے کو کیٹیگوریکلی اس کی پسماندگی کو، بے روزگاری کو اور دیگر مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک چیز میں بتاؤں کہ بلوچستان میں گوادر پروجیکٹ ہو، سی پیک ہو، یہ اتنے بڑے پروجیکٹس ہیں، ان میں صرف بلوچستان کے نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک بوسٹ اپ، اکانومی کا جو ہے بوسٹ اپ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ مزید بھی جا رہے ہیں تکمیل کی طرف انشاءاللہ۔ ان قریب یہ فل فلج فنکشنل ہو جائیں گے، اور جس سے میں کہتا ہوں پاکستان تو پاکستان ہے، پاکستان کے ارد گرد ہمسائے ممالک وہ بھی مستفید ہوئیں گے اس سے۔ اوور آل امپیکٹ جو ہے اس کا سر، اوور آل امپیکٹ بلوچستان پہ تو میں آپ کو بول رہا ہوں ہوگا، یہ ہمارے ہمسائے ممالک بھی اس سے مستفید ہوئیں گے، وہ بھی اس میں بڑا اچھا، ان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ اپ ملے گا ان کو۔ سر، آپ سے مزید یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے، ان میں جو ان ہاؤس تبدیلی ہے وہ بھی دراصل جمہوریت کے استحکام کے لیے بڑی ممد و معاون ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتوں کا مشترکہ مطمع نظر ہے وہ پاکستان کی ترقی ہے؟ آپ بلوچستان کے 25ویں گورنر ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ہم آہنگی اور وفاق کے ساتھ صوبوں کی ایک پازیٹیو لیزون جو ہے وہ درست سمت میں ہے، اور سیاسی معاملات کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یہ جو تبدیلی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنر بحیثیت نمائندہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور ایک پل یا برج کا کردار گورنر کا ہونا چاہیے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان، اور انشاءاللہ
मैं जहाँ तक देख रहा हूँ बलूचिस्तान के लेवल पे या बलूचिस्तान की सतह पे मैं बात करूँगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो इन हाउस तब्दीली थी और जो गवर्नर हाउस का जो किरदार था वो बड़ा बैलेंस्ड और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। और मुझे फ़ख्र है अपने लीडर पे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पे और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कि वक्तन फ़वक्तन मैं उनसे इस बारे में सलाह मशवरे भी करता रहा ताकि हम चीज़ों को आगे ले जा सके। बलूचिस्तान की पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए हम उनके साथ एक ऐसी रिलेशन बना सके फ्यूचर में भी ताकि वो रिलेशंस बलूचिस्तान की एहसास महरूमी या बलूचिस्तान जो बैकवर्ड रह चुका है या गरीब लोगों की जो ज़िंदगी आम ज़िंदगी है उन ज़िंदगी को उनके लिए हम कुछ कर सकें, उनके साथ मिल के हम उनके साथ ये गरीबों के लिए कुछ कर सके बलूचिस्तान में। जो आज तक मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आज तक ये रियलाइजेशन, ये एहसास बदकिस्मती से बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर था। और मैंने कोशिश की है उनको ये एहसास दिलाने की, उनके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कायम करने की ताकि हम ऐसे एटमॉस्फेयर कायम करें गवर्नर हाउस और सीएम सेक्रेटरीट के दरमियान ताकि ये एक ब्रिज का किरदार भी मैं अदा कर सकूं ताकि जितने हमारे अवाम गरीब अवाम हमसे, हमारी गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से और प्लस प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, उनकी मदद से ना हम इस गरीब आवाम को जितना भी मुस्तफ़ीद कर सकें, जितना भी मुश्किलात से निकाल सकते हैं, उनकी मुश्किलात कम कर सकते हैं या उनको ख़त्म कर सकते हैं। यही भला है और यही इंसानियत है और यही खान साहब का विज़न है। इंशाल्लाह इस पर काम करते रहेंगे। जी सर, आज आप यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई में मौजूद हैं और यहाँ पे आपको ब्रीफिंग भी दी गई है और एक बड़ा पॉजिटिव स्पेक्ट्रम हमें नज़र आया यहाँ पे वाइस चांसलर की तरफ से भी और जो दीगर फैकल्टी है यहाँ पे, उन्होंने आपको बताया कि यहाँ पे किस तरह लोरालाई की आवाम के लिए और यहाँ के बच्चे बच्चियों के लिए जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो बदरजा आतम मौजूद हैं। ख़वातीन मुआशरे का एक बुनियादी जुज़्व हैं, एक लाजमी हिस्सा हैं। ख़वातीन की शमूलियत के हवाले से जो मैनेजमेंट है इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट की या आपका जो विज़न है इस हवाले से, आप समझते हैं कि दीगर फाजम कोयटा को ले लें और दीगर शहरों को मवाजना करें तो आप समझते हैं कि उनको भी कौमी धारे में और ये सूबे की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या मेजर्स आपके जहन में है सर? एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि ख़वातीन का किरदार हमारे माशरे में बहुत अहम है। चूँकि बलूचिस्तान के अपने रवायात भी हैं, एक कबायली सेटअप है हर जगह, तो वहाँ में उन रवायात को तोड़ना या उन रवायात के ख़िलाफ़ जाना एक तो बहुत मुश्किल भी है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ वो आजकल दुनिया में, वो बलूचिस्तान में ज़िंदगी के हर शोबे में वो बराबर की शरीक हैं, वो काम करती हैं, बराबर की अगर ना कहें और कम से कम कंपैरेटिवली वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई का मैं बताऊं, मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है। मैंने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जब देखा, इनकी स्टैंडर्ड जो बिल्डिंग्स की वो मैंने देखी, जो अकोमोडेशंस की थी गर्ल्स की और असातिज़ा की, प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स, ये मैंने देखी और उनके हॉल्स मैंने देखे, मैंने उनके ये कैबिन्स देखे, जो कंप्यूटर्स के जो कैबिन्स उन्होंने बनाए हैं मुख्तलिफ अपने प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो लाइब्रेरीज जो बनाई है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतना ज़बरदस्त और इतना फैंटास्टिक काम इन्होंने कराया कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी यहाँ एक घर बना लूँ और यहाँ यूनिवर्सिटी में सर एंटर हो तो एक जो सोशोलॉजिकल फसाड बनता है यूनिवर्सिटी का और जो सफाई सुथराई के मामला हैं तो उससे एकदम पूरा सिनेरियो बदल जाता है सर। बिल्कुल बदल जाता है। सफाई सुथराई तो ऐसा है कि ये हर जगह यह निस्फ़ ईमान भी है और यहाँ इस पे हमें अमल पैरा होना चाहिए। बलूचिस्तान ये यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई में मैंने इस पे ख़ास नोटिस किया है और इनका जो फोकस था मेरे ख्याल में वो बहुत बरअक्स इसके बिल्कुल सही रहा और उन्होंने बहुत सही काम किया है, ख़ास तौर पे सफाई के मामले में। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर मकसूद साहब को और उनके तमाम अमले को और हमारे जो हैं रजिस्ट्रार हैं हमारे तो बाबर साहब हैं, इन सब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो तालीमी सरगर्मियाँ पूरे बलूचिस्तान की सर, उनमें भी एक ये बड़ा मुमेज़ करेगा सर चीज़ों को। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा ये लोरालाई में एक प्योर कबायली सेटअप है और इस कबायली सेटअप के होते हुए, प्योर कबायली सेटअप के होते हुए भी अगर इस यूनिवर्सिटी का ये मैं देखूँ, इतनी हेल्दी एक्टिविटीज़ मैं देखूँ यूनिवर्सिटी की शक्ल में, मुख्तलिफ फैकल्टीज़ की शक्ल में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की शक्ल, यहाँ मैंने देखे बहुत से प्रोफेसर्स दूर दराज के दूसरे सूबों से आए हुए हैं। तो वहाँ हमारी लेडीज़ आई हुई हैं, PhDs आई
स्कॉलर्स आई हुई हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई है इनको देखकर। और इंशाल्लाह अनकरीब मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्ट्रगल्स और एफर्ट्स अगर जारी रही तो बलूचिस्तान भी दीगर सूबों की तरह इंशाल्लाह तालीमी एजुकेशन में जो फील्ड में है उसमें उनके बराबर आ जाए। सर आखिर में सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऑब्वियसली आपका स्टैंस बड़ा क्लियर है, आप खुद भी सर इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स हैं सर। ऑब्वियसली लिटरेचर को और जो अदबी इल्मी मामलात हैं सूबे के उनको बड़ा अमीक निगाह से देखें, और ख़वातीन के हवाले से भी आपने अपनी राय का इजहार किया है। तो इस वक्त जो बलूचिस्तान में BRC की जैसे इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और दीगर कॉलेजेस हैं, ख़वातीन की तरक्की के लिए भी काम कर रहे हैं, तो जो आने वाले कुछ साल हैं सर आप उनमें एक पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं सर, यहाँ पे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा भी है तब्दीली का सर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में जब से मैं आया हूँ और मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ की विजिट भी किया है, तो मैंने एक चीज़ पे फोकस दिया है और मैं वो इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की फजल से वो मैं हरगिज़ में वो करूँगा, मेरिट को बरोकार लाऊंगा और मेरिट पे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँ। मैं इंशाल्लाह खुद भी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह इंटरेस्टेड हूँ। आज भी मैं स्पेशल खसूसी तौर पे यहाँ आया हूँ। स्ट्रेटजी क्लियर है। मैंने मेरिट को, आप अगर किसी भी माशरे में अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं, अपने आप को बगैर, अगर आप ये कहें कि बगैर विदाउट एनी आर्गूमेंट टू एनीवन, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह चलूं, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरिट को फॉलो करें। मेरिट को फॉलो करेंगे, वो मेरिट जो आप फॉलो करेंगे वो खुद ब खुद आपको एक्सप्लेन करेगा, आपके किरदार को, आपकी विजन को खुद ब खुद एक्सप्लेन करेगा, तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। और दूसरी बात, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी बाशऊर लोग हैं, तो बाज़ इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशंस इसलिए आ जाती है कि वो हमारे जो रवायात है कबायली सेटअप की वजह से, उनकी वजह से आ जाती है। लेकिन एज ए होल मैंने जो देखा है बलूचिस्तान में एजुकेशन की जो मामलात है वो आगे बढ़ रही हैं, और ख़ास तौर पे औरतों और लड़कियों के बारे में बहुत बढ़ रही हैं। और मुझे ये आपको बताते हुए खुशी होती है कि तुरबत में मैंने वहाँ लड़कियों की जो स्ट्रेंथ मैंने देखी, मैं हैरान हो गया। आई वॉज वेरी शॉक कि मैं सुन के मैंने जब देखा कि वो, मैंने जो स्ट्रेंथ की मैंने पूछा और उन्होंने जो नंबर मुझे बताया, फिर उन्होंने कहा कि ये सारी यहाँ की लोकल जो स्ट्रेंथ है तुरबत जैसे इलाके में, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि बलूचिस्तान में वो सेंस आ गया है, वो लोगों में वो शऊर आ गया है कि हम बगैर तालीम के कुछ भी नहीं कर सकते। लोरालाई में आज मौजूद हैं, यहाँ पे दो इशूज हैं जो हम अपने प्रोग्राम्स में भी रेडियो पाकिस्तान के तवज्जुह से पहुँचाते हैं कि पानी और बिजली। यहाँ पे जो लोड शेडिंग का दौरानिया है सर वो मोर देन सफिशिएंट से भी ज़्यादा, यानी समझ लें। उसकी वजह एक तो ये है कि कोई बिल्स ना देने के मसाइल भी हैं सर, और पानी के भी मसाइल। तो इसको सर किस तरह से कैटर किया जा सकता है आने वाले दिनों में? मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पानी और बिजली पर खास तवज्जो दी है। उनके लिए खास तौर पे बलूचिस्तान में उन्होंने कई बड़े बड़े डैम्स के भी उन्होंने मंसूबे बनाए कि बड़े डैम भी बनाए। इसके साथ 100 डैम्स का भी एक प्रोजेक्ट अभी भी उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जो आपके ये इस एरिया में है जहाँ पानी की ज्यादा किल्लत है और जहाँ लोगों का रोजगार पानी से वाबस्ता हो, एग्रीकल्चर सूबा है हमारा, तो उसमें हम ये डैम्स लगा के उनके लिए ये कोशिश करेंगे कि पानी का मसला किसी हद तक कम कर दें। और बिजली के बारे में भी आप इस तरह के भी हैं वाकयात, बिल्कुल बिल न देने के भी वाकयात हैं इसमें। ज़ाहिर बिल नहीं देंगे तो एक डिपार्टमेंट तो नहीं चल सकेगा इसके बगैर। तो मेरी लोगों को भी ये तनबीह है, ये अपील है कि बराए मेहरबानी आप जिस गवर्नमेंट के जितने भी बिल्स हैं जो आपको फैसिलिटेशन मिल रही है, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो उस बारे में भी आप लोग बराए मेहरबानी अपने बिल्स अदा करें, वो गैस के हों, वो बिजली के हों, वो किसी और भी मद में हो, ताकि गवर्नमेंट इन्हीं टैक्सेस, आपके टैक्सेस से चलती है, आपके टैक्सेस से वो आगे बढ़ती है। और जितने भी नए न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आपके टैक्सेस की वजह से आते हैं। तो आप लोगों को अल्टीमेटली उसका फायदा भी आपको पहुंचेगा और फैसिलिटेट भी आप ही लोग होंगे। मेरी सबसे ये अपील है कि बराए मेहरबानी अपने मुल्क के बारे में सोचे, अपने सूबे के बारे में सोचे और अपनी फ्यूचर के बारे में सोचे और इस तरह फराखदिली और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस ऑप्टिमिज्म का और जिस उम्मीद परस्ती का जिक्र किया है, खास तौर पे जो इनिशिएटिव आपने बीइंग गवर्नर एज अ चांसलर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ लिए हैं, बड़े खुशाइंद हैं सर। हम ये तवक्को रखते हैं और इस वक्त सूबे की आवाम भी आपसे तवक्को रखती है कि जो आपका विजन है, जो आपका ऑप्टिमिज्म है, वो इंशाल्लाह सूबे के मसाइल भी हल करेगा और यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसको भी बहुत आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, ग्रेटफुल सर, थैंक यू। सामीन, अभी आप गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा का खसूसी इंटरव्यू समाअत कर रहे थे। इंटरव्यूअर थे इमरान जावेद, रिकॉर्डिंग इंजीनियर महताब हैदर और नासिर शेरानी, तदवीन फैसल महमूद, पेशकश रेडियो पाकिस्तान लोरालाई।